So, Jai Hind all, I welcome you all on my YouTube channel, NDA by Arpit. And today we'll be starting with straight lines. And we will be covering the straight lines in our one shot, in our crash course. So, I'm going to start. Before that, I want to say please give your rating to my channel. Please subscribe my channel, and if you ever like the video, then do like all the videos, and please comment and do tell me in the comment section, give your feedback whether you like it or not, and what improvement should I do. If you are feeling some, if you are having some doubt, then please do ask also. So आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा ज़्यादा प्यार दो, विच विल मोटिवेट मी, विच विल हेल्प मी टू इम्प्रूव इन फ्यूचर. सो आप सब मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो. मैं वहाँ पे जितने भी लेक्चर मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, सब कुछ सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं. फर्स्ट आई स्टार्टेड विद ट्रिग्नोमेट्री, आफ्टर दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड हाइट एंड डिस्टेंस, आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, I completed sequences series, I completed binomial theorem. Now I've come to the 2D geometry. I've come to the geometry park. I will be doing straight lines, after that conic sections, after that I will be completing the 3D chapter, 3 geometry chapters, which are vectors and 3D. So I request you all to please watch all the lectures carefully and practice as much as you can, which is going to help you in the future. And please do subscribe my channel if you haven't done it yet. Okay, so we will start with our chapter, which is straight line. Okay, so we are starting this geometry part. हम ज्योमेट्री के चैप्टर स्टार्ट करेंगे. अब हम हमारी जो अगले कुछ लेक्चर चलेंगे वो ज्योमेट्री से रिलेटेड चलेंगे. हम सारे मतलब ज्योमेट्री के चैप्टर्स होंगे सारे, विच विल बी कवरिंग. एंड टुडे विल बी स्टार्टिंग विद स्ट्रेट लाइन. आपने ये चैप्टर 11th में भी देखा था, और मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ. मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ विच आर लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला इज़, आप मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, और उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, x1 y1 x2 y2 है ना, x2 y2. सो उनका जो बीच का जो डिस्टेंस आएगा ना d, दैट विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. आई होप यू गॉट इट. ओके, so this was the first formula. Now second is section formula. Okay, section formula आपको पता है, you have studied this in previous classes from 8th 9th onwards, which is mx2 plus nx1 upon m plus n. हम इससे m x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, एंड my2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस n, है ना. तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, आपको पता ही है. ये इंटरनल के लिए, एक्सटर्नल के लिए बस बीच में माइनस साइन आ जाता है, ये आपको पता ही है. वी विल मूव ऑन टू आर दिस थिंग, मिड पॉइंट फॉर्मूला. इट्स सिंपली इफ मिड पॉइंट देन m and x value will be 1 1, so it will become x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. Okay, you all know this very easily, you know all this very by heart. Now we move on to the area of triangle. अगर हमें तीनों पॉइंट दिए हैं ट्रायंगल के, तीनों कोऑर्डिनेट्स, और हमें उनका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ x1 x2 x3 y1 y1 y2 y3 एंड 1 1 1. यस, सो आप इससे आराम से इसको सॉल्व करके यू कैन गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपको कोलिनियर पॉइंट दियो तो सिंपली आप जो ये डिटर्मिनेंट निकालोगे, उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना. ये इसी डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट कर देना. सो यू विल गेट and after that you can prove that the points are collinear or not, and you can get the value of any point which is unknown if to you in the question. Okay, so I hope you all got it, and we will move on to some next things. Okay, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूँगा. You all please try to do that question by yourself. Okay, so the question which I am writing is,
if two vertices of a equilateral triangle (0, 0, 3, √3) find their वर्टेक्स, फाइंड थर्ड वर्टेक्स, है ना। आपको थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है। ओके, आपको टू वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, आपको दो वर्टेक्स दिए हैं इक्विलेटर ट्रायंगल के, एंड आपको थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है। सो ऑप्शंस आर गिवन टू यू। थर्ड वर्टेक्स क्या होगा, आप सब इस वीडियो को पॉज करके फाइंड करने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन इज 0, √3, ऑप्शन बी इज 0, 2 √3, ऑप्शन सी इज √3, -√3, and option D is 0, √3. Okay, so these are the things, the points आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा थर्ड वर्टेक्स। ओके, सो आपको ये मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ ट्रायंगल। आपको एक पॉइंट दिया है 3, 3, √3 एक पॉइंट दिया मैं, एंड सेकेंड इज 0, 0। आपको इसके पॉइंट फाइंड करने हैं। हम इसको h, के मान लेते हैं। अब मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप सब इस वीडियो को पोस्ट करके सोल्व करने ट्राई करिए। आफ्टर दैट मैच विद माई आंसर वेदर यू डन इट करेक्टली और नॉट, एंड डू वॉच दिस ऑल्सो हाउ ईजिली आई हैव डन इट, एंड इफ़ यू हैव डन इट कॉम्प्लेक्सली देन हाउ व्हाट्स द करेक्ट मेथड डू इट। आपने एक क्वेश्चन पॉइंट मान लिया h, के, यहाँ पे आपने देख लिया इन दोनों ये इक्विलेटर ट्रायंगल है मैं दिया है, तो सबकी साइड इक्वल होगी, है ना। सबकी साइड इक्वल होंगी, ये दोनों में पॉइंट दिए हैं। यहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूले से इनको वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। √9 + 3 विच इज़ √12। √12 है मतलब सबका मैग्नीट्यूड √12 है, सब साइड √12 है। हमें ये बात पता चल गई। हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज़ √h² + k² इक्वल्स टू √12, है ना। h² + k² होगा हमारा 12, h² k² हमारा 12 होगा, ये मैं पता चल गया। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करा हमने यहाँ पे भी। और आप पॉइंट करके देखो, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, ये नहीं हुआ, है ना। 0 हो गया यहाँ, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हम चेक करेंगे और कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका हो गया 3 और इसका भी हो गया 3, 6 होना चाहिए। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और ये इसका भी 3 आएगा, 0 और √3 का स्क्वायर 3, तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिर्फ ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ को। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप समझ गए होंगे हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो अब हम स्लोप की बात करेंगे। वी मूव ऑन टू सम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम स्लोप की बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज स्लोप। ओके, तो स्लोप इक्वल्स टू m, हम स्लोप को m से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, और वी कैन राइट दिस ऑल्सो एज tan - अल्फ़ा। ओके, सेकेंड आई कैन राइट दिस tan थीटा इक्वल्स टू, हम इसको पता है हम m से डिनोट करते हैं, और जो हमें स्लोप होता है हमें पता है इस बात का, तो ये होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओके, सो आपको इस बात का तो पता ही है कि जो स्लोप होता है ये y2 - y1 और x - x1 होता है। ये बात मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी, जो अभी मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था चैप्टर, उसमें भी मैंने आपको ये डिस्कस करा था, है ना। सो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और आपको यू हैव स्टडीड दिस इन 10th क्लास ऑल्सो, 11th क्लास ऑल्सो यू हैव स्टडीड दिस, और 12th क्लास में भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर था उसमें भी हम वहाँ पे टेंजेंट जो हमारा टॉपिक दिया गया था एप्लीकेशन डेरिवेटिव में, वहाँ पे हमें स्लोप के बारे में पढ़ाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए स्लोप को हम tan थीटा भी बोलते हैं। आपको अगर थीटा अवेलेबल है आप थीटा पुट कर दो, और जो अल्फ़ा है ना, ये अल्फ़ा हम ऐसे ले रहे हैं कि यहाँ से एक अगर लाइन है, यहाँ से थीटा एंगल बना रही है, तो जो यहाँ से एंगल बनेगा ये ऐसे, अगर नेगेटिव उल्टा लेंगे हम तो वो उसे हम -अल्फ़ा बोल देते हैं, है ना। तो ये होती है, ये बात है, दोनों एक ही बात होती है। ओके, और tan थीटा मैंने आपको बता दिया y2 - y1 अपॉन x2 - x1 है। थर्ड चीज़ हमें पता है, अगर हमें जो हमने 12th क्लास में पढ़ी है एप्लीकेशन डेरिवेटिव में, अगर हम dy/dx निकालें तो वो स्लोप ही निकल के आता है ना, एट पॉइंट x1, y1, तो विच इज़ बट m स्लोप, तो वो स्लोप ही निकल के आता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए एंगल ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस, अगर आपसे पूछा जाए एंगल ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस के साथ एंगल ऑफ लाइन बताओ, तो उसकी वैल्यू सिंपली क्या होगी, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स m। ओके, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स m, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स m होगी, इस बात का आपको पता है। ओके,
ओके, सो वी विल मूव टू सम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और आप उसका आंसर फाइंड करने का यू ऑल्सो मस्ट ट्राई। उससे पहले मैं आपको एक बार केसेस ऑफ स्लोप बता दूं, है ना, स्लोप के केसेस। ओके, तो केसेस ऑफ स्लोप क्या होती है, आप प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। केसेस ऑफ स्लोप होती है आपको, आपने ये 11th क्लास में देखे होंगे, व्हेन लाइन्स आर पैरेलल, जब लाइन्स पैरेलल होगी। तो फर्स्ट थिंग विच आई एम टेलिंग यू इज व्हेन लाइन्स आर पैरेलल, जब लाइन्स पैरेलल होती है तो यू नो जो स्लोप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, कि स्लोप इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप इक्वल होंगे। ओके, आप ऐसे समझो, यहाँ पे एक लाइन है, ओके, यहाँ पे एक लाइन है, और दोनों का थीटा इक्वल सेम है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ओके, आपको एक बात पता चल गई। और आपको दूसरी एक बात पता होनी चाहिए, जो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है, फिर एक्स एक्सिस का जो पैरेलल लाइन होती है, उनका स्लोप की वैल्यू होती है 0। ओके, ओके, m इक्वल्स टू 0। ओके, ये बात आपको पता चल गई। अनदर थिंग इज स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस का स्लोप होगा 1/0। 1/0 वाई एक्सिस का स्लोप 1/0 होता है, इस बात का भी पता चल गया आपको। नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इज, प्लीज नोट इट डाउन। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो -1 होता है ना। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट m2 इक्वल्स टू -n1, कि वो नेगेटिव रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है। सो आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होंगी। ओके, और अब मैं एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आई वांट टू डिस्कस विद यू इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच में एंगल क्या होगा। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए दो लाइन के बीच में एंगल, तो आप सिंपली एक फॉर्मूले का यूज़ करोगे विच इज़ tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 n2। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ओके, सो you have studied this in 11th class also and even in 12th class also. So you must remember this by heart. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशंस फाइंड करने की बात है आपसे, दिस आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, और यू कैन, आपको इक्वेशंस आप माइंड में सॉल्व कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, बट विदाउट नोइंग दिस कॉन्सेप्ट यू कांट स्टडी दिस चैप्टर एनी मोर, you won't be able to solve the questions. So this is required to do equations of straight line, and first is slope point form. स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या होती है, हमारे पास एक पॉइंट होता है और हमें लाइन का स्लोप पता होता है, तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हो एट m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड यू कैन राइट दिस ऑल्सो एज y2 माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x2 माइनस x1 माइनस y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ओके, या जब इक्वेशन फाइंड करनी हो, स्लोप तो हमें पता ही है y2 माइनस x2 माइनस x1 होता है। अगर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है तो m इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और आप लिख सकते हो y माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1। ओके, सो दिस इज द थिंग यू ऑल मस्ट रिमेंबर, दिस इज नोन एज स्लोप पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे आपको एक पॉइंट पता है और स्लोप की वैल्यू पता है, आपको स्लोप पता है लाइन का। सेकेंड फॉर्म इज यू नो स्लोप फॉर्म। हमारे पास सेकेंड फॉर्म होती है स्लोप फॉर्म, और स्लोप फॉर्म इज़ वेरी सिंपल, दैट y इक्वल्स टू एम एक्स, एम स्लोप होता है, और इसमें प्लस सी भी आ जाता है, आपको पता है, और y इंटरसेप्ट होता है। अगर ऑर्डिनरी से जाएगी तो c की वैल्यू 0 होगी, y इंटरसेप्ट नहीं होगा, है ना। सो नाउ थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म। अगर आपको लाइन के 2 पॉइंट पता है, अगर आपको लाइन पे 2 पॉइंट पता है तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन वेरी इजीली बाय यूजिंग दिस 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 equals to y minus y1 upon x minus x1. By using this you can find the value of the, you can get the equation very easily. Okay, so अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बता देता हूँ। अगर आपको इसी से रिलेटेड है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से ही, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ओके, सो द थिंग विच आई वांट टू टेल इज
अगर आपको ये दे रखा हो, स्लोप दिया हो और एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको दिया हो, है ना, ये होती है स्लोप एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, और क्या होती है, वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी, है ना। सो आपको यहाँ पे स्लोप दिया होगा लाइन का और उसका एक्स इंटरसेप्ट दिया होगा, है ना। एक्स इंटरसेप्ट दिया है, स्लोप दिया है लाइन का, तो यू कैन गेट द इक्वेशन बाय यूजिंग दिस। ओके, और अगर आपको स्लोप दिया और वाई इंटरसेप्ट दिया है तो यू कैन यूज़ स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। आप इस फॉर्म का यूज़ करके यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन वेरी इजीली। और होती क्या है, आप प्लीज़ नोट इट डाउन, दैट y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y equals to mx plus c, m is slope and c is what, c is your this thing y intercept. So you all must know the value of this by heart. Next form is intercept form. Okay, intercept form आपको तो ये पता ही होगी intercept form, you studied this in 11th class 12th class, है ना। So it is x upon a plus y upon b equals to 1. Okay, so you all must remember this is intercept form. Okay, so intercept form is x upon a plus y upon b equals to 1. Okay, now the next form is intercept form, normal form, intercept form में देखिए नॉर्मल फॉर्म आपको पता है। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, अगर आपको एक लाइन दी हो और आपको उससे ओमेगा पता हो, मतलब थीटा को यहाँ पे ओमेगा से डिनोट करते हैं। अगर आपको लाइन, अगर उसके परपेंडिकुलर लाइन आपको पता है, उसका आपको पता है डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर लाइन का। अगर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन खींचे उस लाइन पे, हमारी गिवन लाइन पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p आपको पता है, और जो परपेंडिकुलर लाइन गई है उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ओमेगा, आपको उसकी वैल्यू पता है। तो और आपसे इस वाली लाइन की, गिवन लाइन की इक्वेशन पूछी है, सो यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली by using this form, which is x cos omega plus y sin omega equals to p. So you must remember this, x cos omega plus y sin omega equals to p. Okay, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको मान लो एक इक्वेशन दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0, तो आप देखते हैं इसका स्लोप बता सकते हो। स्लोप होता है नेगेटिव जो x से आगे लिखा हो a अपॉन ये y के आगे लिखा होगा डिनोमिनेटर में b, विच इज़ ये। तो इस लाइन का स्लोप होगा ये a है, वो c जैसा लग रहा है यहाँ पे, नहीं, नेगेटिव a अपॉन बी। ओके, सो आप इस लाइन को ऐसे ही देख के बता सकते हो। अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको अगला बताना चाह रहा हूँ वो है पैरेलल लाइन्स देखने में कैसी होती है। मतलब दो लाइन पैरेलल है तो हम देख के बता सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। और परपेंडिकुलर लाइन तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। एंड कैसे, आपको एक लाइन दी है, इसकी इक्वेशन होगी, दी आपको एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0, और आपको गिवन है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। तो आप देखते ही बता सकते हो जो ए एक्स प्लस बी वाई होगा ना, वो इन दो ये वाली वैल्यू तो सेम होगी, और बस C2 यहाँ पे चेंज होगा, है ना। क्योंकि आपको पता है दो लाइन पैरेलल का स्लोप इक्वल होगा, तो इस लाइन का स्लोप भी होगा माइनस a अपॉन बी, इस लाइन का स्लोप भी, तो सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आएगा सिर्फ जब पैरेलल लाइन्स होंगी। ये स्टार्टिंग की वैल्यू विल बी सेम। और परपेंडिकुलर लाइन में आपको एक लाइन गिवन है, मान लो ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। आपको इस लाइन की इक्वेशन है, गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0, और आप इसकी बता सकते हो, हाँ इन दोनों का स्लोप, आपको दो लाइन परपेंडिकुलर आपको स्लोप पता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। आप इस वाली इक्वेशन बता सकते हो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस C2 इक्वल्स टू 0, तो इस लाइन की इक्वेशन ये बन जाएगी। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आप देख के बता सकते हो कैसे क्या होगा। और अब डिस्टेंस, इन दोनों लाइन के बीच में आपको डिस्टेंस पूछे, दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, सी मॉडुलस के अंदर C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। ओके, सो आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। और अगर शॉर्ट है, अगर ओरिजिन ही दे दें 1.0 हो जाएगा, तो ओरिजिन, अगर एक पॉइंट ओरिजिन होगा तो वो बन जाएगा C मॉडुलस अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, विच इज शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो इसको हम शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो हम इस चैप्टर के आखिरी कॉन्सेप्ट पर पहुंच रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको कुछ टर्म्स के मीनिंग बताऊंगा। आप अगर आपको इन टर्म्स के मीनिंग पता होंगे तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन बाय यूजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट विच आई टोल्ड यू। पहला कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, दैट इज सर्कम सेंटर।
सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर होता है, इट इज मीटिंग पॉइंट ऑफ साइड्स बाइसेक्टर, साइड्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, सो ये होता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर होता है जो साइड्स हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, उनका मीटिंग पॉइंट। ओके, कि जैसे ये एक ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है। ओके, अब इस वाली लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर हम कंपास से ऐसे फाइंड करते हैं, जब यहाँ पे क्रॉस मारते हैं, हम यहाँ पे क्रॉस मारते हैं, है ना, दोनों साइड, फिर उन्हें मैच करते हैं, ऐसे मिलाते हैं। मान लो ये एक लाइन गई, है ना, ये एक लाइन गई। ओके, और फिर हम इस वाली साइड से हम परपेंडिकुलर मारेंगे कट, यहाँ मारेंगे, यहाँ मारेंगे हम कट, फिर यहाँ से हम एक लाइन लेके जाएंगे, ऐसे चली गई। फिर हमने ये वाली लाइन है, यहाँ से कट करी, है ना, फिर हम ऐसे लेके चले गए। ओके ना, हम ऐसे मान लो ऐसे लेके चले गए, यहाँ पे बैठा कुछ कट, है ना, और जब तीनों का हमने कट निकाला और जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकला, जहाँ पे तीनों लाइन इंटरसेक्ट हुई, है ना, तो उसी लाइन को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ साइड्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको ये टर्म क्लियर होनी जरूरत थी, इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, सो आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इफ़ यू नो द टर्म क्या होती है। एंड दिस इज सर्कम सेंटर। ओके, so now we will move on to next concept, and the next point is orthocenter. Now what is orthocenter? I'm going to tell you that orthocenter क्या होता है। orthocenter होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल 3 एल्टीट्यूड्स। जो तीनों एल्टीट्यूड है उनके मीटिंग पॉइंट। ओके, अब क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रायंगल है। ओके, मतलब ये तीनों साइड से ये ट्रायंगल है। ओके, अब अगर मैं इस वाले पॉइंट से इस वाले लाइन पर कुछ लाइन खींचूं और वो उसके परपेंडिकुलर हो, तो उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि इसको इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करे, पर ये इस पॉइंट से जो सामने वाली लाइन साइड है उस पर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर खींचूँ, यहाँ पे जाके परपेंडिकुलर बने, तो इसको हम इस लाइन का एल्टीट्यूड बोलेंगे। तो ये हो गया एक। अगर मैं यहाँ से खींचूँ तो इट विल बिकम दिस, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। ओके, और अगर मैं इस वाली लाइन से सामने वाली इस वाले पॉइंट से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर खींचूँ, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बना, तो ये इसका एल्टीट्यूड होगा। तो ये जो तीनों एल्टीट्यूड मैंने खींचे, जो उनका मीटिंग पॉइंट है, हम इसी को ही ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। तो आई गेस नाउ यू ऑल गेट व्हाट इज़ द ऑर्थोसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। अब मैं आपको एक लास्ट टर्म बताऊंगा और आफ्टर दैट वी विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर। ओके, सो द लास्ट टर्म ऑफ दिस चैप्टर, after that we will be wrapping this chapter up. So this class now, concurrent lines क्या होती है। concurrent line are three or more than three lines have one common intersection point। ये तो आपको पढ़ के समझ आ गया होगा, इसमें तो मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। 3 लाइन है मान लो, है ना, और वो एक जगह पे ही इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उन्हें हम कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे, है ना। तो 3 से ज़्यादा लाइन बोल सकते हैं, 3 और मोर देन 3 लाइन्स हैव वन कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हो, ज़्यादा ना हो, सब एक जगह पर आगे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, तो देन वी कॉल इट एज व्हाट, the concurrent lines. Okay, so I hope you all get it. So thank you for attending my lecture, and I hope you all have understood what I taught you. और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को ज़्यादा प्यार दो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, एंड डू टेल इन द कमेंट सेक्शन वेदर you give your feedback what the changes you want, and is the class okay for you all, and keep on working harder.
आप मेहनत करते रहो। अगर आप, मैं इस बात की श्योरिटी ले रहा हूँ, अगर आप मेरी क्लास अच्छे से पढ़ते हो, नथिंग एल्स यू नीड टू डू, यू विल गो इन द एग्जामिनेशन एंड यू विल सी दैट यू आर एबल टू डू द क्वेश्चंस वेरी इजीली। ओके, आप प्रैक्टिस करो, घर पे प्रैक्टिस करो मेरी वीडियो लेक्चर्स को। यू कैन सी एज मच एज यू कैन सो देम the more time you want, 2 times, 5 times, 10 times, do watch them. Make note down the important key things, the formulas and the important concept which I'm writing. Please note down in your notebook. And so thank you all. Jai Hind.